राजकीय महाविद्यालय रायपुर रानी में एक दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस आयोजन में महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसमें विधायक शक्ति रानी ने विधिवत मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय प्रबंधन कमेटी के सहयोग से प्राचार्य शैलजा छाबड़ा के नेतृत्व में विधायक शक्ति रानी शर्मा को शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही दिलीप नंबरदार को भी उनकी सेवा के लिए सम्मानित किया गया। जानकारी के अनुसार विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्रों, शिक्षकों और अन्य लोगों से मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के समान महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। इस दौरान विधायक ने मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए सकारात्मक सोच, योग, ध्यान और तनाव प्रबंधन की तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने यह भी कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता फैलाने के लिए समुदायों और संस्थानों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि किसी को भी मानसिक समस्याओं का सामना अकेले न करना पड़े। वहीं विधायक शक्ति रानी ने महाविद्यालय के स्टाफ को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और जल्द ही उनकी आवश्यक सुविधाओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने महाविद्यालय में बेसिक सुविधाओं की कमी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि उनकी सरकार इस दिशा में शीघ्र कदम उठाएगी। इसके अलावा महाविद्यालय प्राचार्य शैलजा छाबड़ा ने विधायक शक्ति रानी का धन्यवाद किया और कहा कि यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस न केवल छात्रों को नई जानकारी प्राप्त करने का अवसर देती है, बल्कि यह समाज और शिक्षा के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद का माध्यम भी है। इस मौके पर महाविद्यालय के अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। And my whole college staff welcome our esteemed chief guest for today, Ma'am Shakti Rani. Ma'am, welcome to our college. Words would definitely fall short to explain the achievements. Many of the people sitting here, आप लोग local हैं,
and my colleagues. It is with great honor and immense pleasure that I welcome you all to this prestigious international conference, and especially I extend a very warm and heartfelt welcome to our distinguished chief guest, Srimati Shakti Rani Sharma ji, the esteemed member of the Legislative Assembly of Kalka, Haryana. We are truly privileged to have you today with us, as your presence adds tremendous value to this gathering. Your remarkable leadership and dedication to the welfare and development of Kalka and its people inspire us all. We are confident that your insights and guidance will inspire the participants of this conference and pave the way for future collaboration and growth. This conference is a significant platform where scholars, researchers, and thinkers from across the globe have come together to share their knowledge, exchange ideas, and contribute to the advancement of research and innovation. We believe that with your support, we can build a stronger bond between academia, government, and society at large, working collectively towards a brighter future of Government College Raipur Rani Panchkula. Once again, I extend a warm welcome to Madam Shakti Rani ji and all our esteemed guests. Your presence here enriches this conference, and we look forward for valuable insights throughout the event. A brief bio note of Madam, though बहुत कुछ कहना तो जैसे सूरज को चिराग दिखाने जैसा होगा, but still I would love to read her political experience. She has contested assembly elections as independent in Haryana from Kalka in 2014, and then has won mayor election of Ambala city. She is BJP's sitting MLA from Kalka Assembly 2024, and she has been associated with the Women Cricket Association Chandigarh since 1985. She is chairperson of Indian Council of Social Welfare Chandigarh. She is also holding the position of General Secretary of Women Cricket Association Chandigarh since 1990, and till date she holds the position of President of All India Women Cricket Association. She has been organizing and managing free medical camps from last 20 years in various cities of Haryana. A big round of applause, please. Not only that, she is a trustee of Haryana Institute of Fine Arts. She holds the position of chairperson of Ambala Healthcare and Welfare Society. She is also holding the position of member of Committee on Public Undertaking in Haryana Vidhan Sabha and a member of Committee on Education, Technical Education, Vocational Education, Medical Education and Health Services Haryana Vidhan Sabha, which is quite a big position. She is member in various other organizations as well. यहाँ पर मौजूद जितने भी हमारे माननीय सरपंच हैं, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के अन्य सम्मानित सदस्य हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर आप सबका उपस्थित होना हमारे लिए गर्व और हर्ष का विषय है, और आप सबके मार्गदर्शन में हम इस कॉलेज को बहुत ऊंचाइयों तक और बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने इस छोटे से प्रांगण में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे
बीच हमारे प्रिंट एवं ब्रॉडकास्ट मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार बंधु आए हैं, जिनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप समाज की आवाज़ हैं जो सटीक एवं निष्पक्ष सूचना जनता तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आपके माध्यम से हमारी बातें व्यापक स्तर पर पहुँचती हैं और आपके सहयोग से समाज में जागरूकता एवं सकारात्मक परिवर्तन संभव हो पाते हैं। हम आपके अमूल्य समय एवं उपस्थिति के लिए कृतज्ञ हैं और आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। Once again, I extend a very hearty welcome to all present in the multipurpose hall for this international conference. Thank you so much. पर मैं उनकी इस पहल की सराहना करती हूँ और तारीफ करती हूँ कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह के कार्य करते रहें। आज मेरे सम्मुख इन्होंने कुछ मांगे भी रखी हैं जो बहुत बेसिक और ज़रूरी मांगे हैं जो हर कॉलेज को उपलब्ध होनी चाहिए। और मुझे हैरानी है कि ये आप इन सब चीज़ों के लिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट वाइज ही ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी, पर मैं आपकी दिक्कत समझ रही हूँ और मैं इसको आगे रखूँगी और जल्द ही आपकी ये जो सारी डिमांडें हैं वो पूरा करा दूँगी। क्योंकि जब तक आपके कॉलेज का एनवायरनमेंट फ्रेंडली ना हो और सारी सुविधाएं ना हो तो उसमें बच्चों की रुचि भी कम हो जाती है, टीचर्स की भी रुचि कम होती है। तो ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें आपको लगे कि हाँ आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ने आ रहे हैं। तो इस कॉलेज को हम ज़रूर उस लेवल तक लेके जाएंगे ताकि हमारे क्षेत्र को फख्र हो, हमारे बच्चों को फख्र हो, जो ऐसे कॉलेज या इंस्टीट्यूट से पढ़कर आ रहे हैं। मैं आपके स्टाफ की भी तारीफ करना चाहूँगी, आपके टीचर्स की भी, जिन्होंने इन दुर्गम हालातों में भी अपने बच्चों का ध्यान रखा है। और मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि आपको जब भी जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी मैं सदैव आपके पास हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहुत सुबह बहुत जल्दी आप सबको यहाँ बुलाया गया, वो मेरी वजह से। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने समय निकाला यहाँ पहुँचने का। हमारी विधानसभा में ओरिएंटेशन चल रही है और 10:30 बजे से शुरू होती है, मुझे वापस 10:30 बजे पहुँचना है। और यही कारण था कि ये जो हमारे प्रोग्राम था ये प्रीपोन किया गया। और मैं बहुत दुख भी लग रहा मुझे कि हमने पहले भी एक बार प्रोग्राम के लिए टाइम दिया था और तभी व्यस्तता की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो सका था और ये दूसरी बार था। तो इसलिए मुझे बहुत हिचक थी कि ऐसा ना हो कि मेरी वजह से प्रोग्राम आपका डिलेड हो। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी प्रिंसिपल महोदय से कि थोड़ा अगर आप उसको सुबह जल्दी कर लें तो मैं आपके पास पहुंच जाऊँगी। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी ये रिक्वेस्ट मानी है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आए हुए मौजूद लोग, शहर के मौजूद लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे सरपंच बैठे हैं सब यहाँ पर, और सभी बहुत ही प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने भी सुबह सुबह समय निकाला यहाँ आने के लिए, और ख़ास करके बच्चों के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने समय से पहले यहाँ पहुँचे और मुझे सुना और मुझे मौका दिया आप सबके बीच में आने का। बहुत